Hey guys, welcome to the next lecture of chemical thermodynamics. In this lecture, I'm going to discuss Hess's law of constant heat summation. Now, we have already discussed about enthalpy change in physical processes, enthalpy change in chemical reaction, and what is the relationship of enthalpy with delta U and work. Now, let's move on to this law of constant heat summation. This law is also called as law of constant heat summation. It means what? Summation means addition. So it means what? And constant का मतलब क्या हो गया कि the value will remain same. So the law states that if you carry out a chemical reaction in one step, or you carry out a chemical reaction in series of steps, the total amount of heat, the total amount of energy will remain constant. Very simple to understand. Okay, the total heat with respect to any chemical reaction is independent of the path followed. Okay, that is a change in enthalpy. I'm talking about the change in enthalpy, that is a heat content. I'm not talking about Q, I'm talking about delta H, and delta H is a state function that depends upon initial and final state. So suppose आपने एक reaction carry out किया एक ही step में, product बन गया. Suppose आप same product बना रहे हो using multiple step. So the total amount of heat content, that is delta H, for the multiple step will be equivalent to single step for the same product. So that's why I said Hess's law of constant heat summation says you carry out a reaction in one step or a series of steps, the total heat content of the system will remain constant. That is called as Hess's law of constant heat summation. तो इसका मैं law लिख के explanation लिख देता हूँ. I'll write down here. The law states that the change in enthalpy for a reaction is same whether the reaction is carried out in one step or in series of steps or a series of steps. मतलब suppose a chemical reaction है, consider a chemical reaction. A gives a product P. For this reaction, suppose the delta H value, समझो the standard मैंने enthalpy calculate किया, standard enthalpy इसका निकल रहा है x kilojoules per mole. Okay, this is a one step reaction. मैंने एक ही step में product बना लिया A से. Now suppose if we carry out a reaction in series, अब मैं इस reaction को फिर से मैं product बना रहा हूँ, लेकिन कैसा बना रहा हूँ, just check it out. In series, A in a first step gives B, B in a second step gives P. So this is your first step, this is your second step to make P. First step के लिए जो delta H naught है, suppose it is Y kilojoules per mole, and second step जो product बना है delta H naught उसका है Z kilojoules per mole. So see, this product is formed in one step, same product is formed in two steps. So when you analyze their heat, we can write down from the Hess law of constant heat summation कि you make a product in one step. आपने product को एक step में बनाया है, या तो उस सेम प्रोडक्ट को आप मल्टीपल स्टेप में बना रहे हो, तो टोटल हीट जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी. सो x विल बी इक्वल टू y प्लस z. तीन स्टेप होता तो तीनों स्टेप की हीट जो ऐड करोगे वो वन स्टेप से इक्वल हो जाएगी. तो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. Why? Because delta H is a state function. It does not depend upon the path followed. It depends upon the initial and final state. So I'll give you an example to understand, a chemical example with numerical to understand this. Okay. So I hope you understood कि मीनिंग क्या है इसका. इसका मीनिंग ये है कि आप इस रिएक्शन को एक स्टेप में कर रहे हो या सीरीज में कर रहे हो, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट विल रिमेन कांस्टेंट इन द एंड. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ Hess's लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. अभी मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं. फॉर एग्जांपल
सपोज आई टेक मीथेन CH4 गैस, इसको मैंने क्लोरीनेट किया। ओके, तो मीथेन का क्लोरीनेशन कर रहा हूं, Cl2 CH4 क्लोरीनेट होगा। सपोज आई रिप्लेस 2 हाइड्रोजन हियर, सो आई विल गेट मिथिलीन डाइक्लोराइड प्लस 2 मोल्स ऑफ मिथिलीन डाइक्लोराइड प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl। ओके, यहाँ 2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन ले लिया मैंने। So I'm making methylene dichloride. If I analyze the delta H naught of this reaction is minus 202.3 kilojoules. ये मुझे वैल्यू मिल रहा है। ओके, minus 202.3 kilojoules का वैल्यू इस रिएक्शन के लिए, जहां पर मैंने क्या बनाया है, डाइक्लोरोमीथेन बनाया है। So I made dichloromethane here, chlorination of methane. I got this value for delta H. Now to make this dichloromethane, I can make it in 2 steps. स्टेप 1 में मैं ऐसा कर सकता था कि मीथेन आई डू क्लोरीनेशन विद 1 मोल ऑफ फ्लोरीन टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड NHCl। इसका कुछ ना कुछ हीट वैल्यू होगा। दैट डेल्टा H वैल्यू सपोज कम्स अराउंड minus 98.3 kilojoules। ओके, गेट दिस वैल्यू फॉर इसको मैं डेल्टा H1 कर देता हूँ। और स्टेप 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, द मिथाइल क्लोराइड विच इज फॉर्म दैट इज CH3Cl इज अगेन क्लोरीनेटेड। So one more hydrogen is replaced to form CH2Cl2 plus you get HCl. So for this reaction, delta H naught is minus 104 kilojoules. Okay. अगर मैंने ये दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया, if I add both this reaction, so this common term will get cancel out. I get methane CH4 plus 2 moles of chlorine, getting what, CH2Cl2 methylene dichloride plus 2 moles of HCl. So अभी इसे भी ऐड करना पड़ेगा। तो जब मैं ऐड कर दूंगा तो फाइनल डेल्टा H नॉट ऑफ दिस विल बी, व्हेन यू ऐड दिस, सी प्रॉपर्ली, 104 एंड 98.3 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा minus 202.3 kilojoules. So see properly, you carry out the reaction in one step or you carry out the reaction in multiple steps, the total amount of heat will always remain constant. Simple. This is Hess's law. Now what is the application of Hess's law? सबसे पहले एप्लीकेशन है Hess's law का, उस कंपाउंड के बारे में, उस कंपाउंड की डेल्टा H हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जो इजीली नहीं मिलता है, जिसके डेल्टा H इजीली फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आई विल राइट डाउन योर एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली द एंथैल्पी ऑफ सम रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस की आप एंथैल्पी नहीं निकाल सकते। ओके, तो बट हेसेस लॉ वो हमको हेल्प करता है टू फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ सच रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आई कैन राइट डाउन योर difficult, it is difficult to calculate change in enthalpy, that is delta H, for some reaction like formation of CO. कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मेशन रिएक्शन है उसका डेल्टा एच निकालना बहुत डिफिकल्ट है। व्हाई, क्यों, उसका रीजन क्यों है, क्यों ऐसा? बिकॉज सम CO ऑन ऑक्सीडेशन कन्वर्ट्स टू CO2। मतलब आप कार्बन ले रहे हो ग्रेफाइट में, उस कार्बन को हीट किया, ऑक्सीजन, पार्शियल ऑक्सीडेशन गिव्स CO, ये मिलना चाहिए। बट थोड़े CO के साथ में सम CO2 भी फॉर्म हो जाता है। इसके लिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा H यहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि उसके साथ में एक दूसरा प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है, CO2। आप ढूंढ रहे हो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, बट आपको थोड़ा बहुत उसमें CO2 भी मिल जाएगा, तो डेल्टा H का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा CO के लिए। तो क्या करना चाहिए ऐसे रिएक्शन के जिसका आप लोग डेल्टा H डायरेक्टली नहीं निकाल सकते? तो इनडायरेक्टली निकालो यूजिंग हेस लॉ, बिकॉज हेस लॉ of constant heat summation gives you the liberty to calculate the delta H by one step or by series of step, because anyhow the delta H will remain constant। तो आप क्या करोगे, सर ये रिएक्शन से मुझे एग्जैक्ट वैल्यू CO का डेल्टा H का नहीं मिल रहा है, बोला कोई बात नहीं, तो एक काम कर, पहले स्टेप 1 का रिएक्शन कर, ग्रेफाइट ले ले, ओके,
उसको पूरा ऑक्सीडाइज कर दे, तो ऑब्वियसली वो क्या बनाएगा, अपना CO2 गैस बनाएगा। ओके, योर द डेल्टा एच वैल्यू कैन बी इजीली फाउंड आउट। दिस इज माइनस 393.5 किलो जूल्स। 393, राइट इट प्रॉपर्ली, 393.5 किलो जूल्स का तुमको हीट मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, प्योर गैस, यू ऐड पार्शियल ऑक्सीडेशन, ये फिर CO2 बनाएगा गैसियस फॉर्म में। इसका डेल्टा एच भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बार आपने CO यूज किया है। दिस CO इज नथिंग बट व्हाट, प्योर CO का सिलेंडर यूज किया, इसमें सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका डेल्टा एच नॉट निकालोगे तो दैट कम्स टू माइनस 283.0 किलो जूल, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ यू वांट दिस रिएक्शन, सी प्रॉपर्ली, ये रिएक्शन हमको चाहिए। तो ये रिएक्शन कहाँ है, कैसा मिलेगा, ग्रेफाइट हमारा लेफ्ट पे होना चाहिए, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, और राइट पे क्या होना चाहिए, CO। सो अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, टू गेट दिस, सी प्रॉपर्ली, इट्स अ टोटल मैथमेटिकल अप्रोच, टोटल मैथमेटिकल अप्रोच। अगर मैंने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे, सोचो। इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, C ग्रेफाइट O2, तो लिखूं यहां पर मैं C ग्रेफाइट प्लस O2। अच्छा, ये माइनस करना है, तो माइनस CO माइनस हाफ O2 गिव्स व्हाट, CO2 माइनस CO2। ठीक है, अब देखो बराबर देखो, 1 O2 हाफ O2 गिव्स हाफ O2, तो क्या मिलेगा मुझे, C ग्रेफाइट प्लस हाफ O2। अब ये तो पूरा जीरो हो गया। अब माइनस CO, इफ इट गोज ऑन राइट हैंड साइड इट बिकम्स व्हाट, प्लस CO। अब ये तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस CO को मैंने राइट पे ले लिया तो CO। अब जीरो को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आई रिमूव दिस जीरो, इफ आई रिमूव दिस जीरो आई विल अल्टीमेटली गेट वॉट, CO। तो देखो ये आपको आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया by doing equation 1 minus equation 2. So now the delta H of the reaction will be delta H of equation 1 minus delta H of equation 2. So delta H not 1 माइनस डेल्टा H नॉट 2। तो दोनों का आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 माइनस 2 करोगे, तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल इक्वेशन CO का, जो आपको एक्सपेरिमेंटली नहीं मिल रहा था। सो इनडायरेक्टली यू फाउंड आउट द फॉर्मेशन ऑफ CO। सो डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 किया, मतलब माइनस 393.5 माइनस ऑफ माइनस 283, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करके आपको एक वैल्यू मिलेगा, दैट वैल्यू इज minus 110.5 किलो जूल। सो दिस इज द वैल्यू फॉर डेल्टा H। तो डेल्टा H का वैल्यू मैंने ढूंढ लिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CO, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली 110.5 किलो जूल्स, सी, बाय यूजिंग दिस टू रिएक्शंस। अब ये दोनों रिएक्शंस का डेल्टा H हमको पता है, so if I 1 minus 2, if I subtract 1 minus 2, I will get this equation. So guys, required equation लेके आने के लिए जो equations दिए होंगे, you have to do a mathematical approach with it. You divide, you multiply, you add, you subtract, but get the desired equation. Once you get the desired equation, you get the desired delta H value. Okay, so ये इसका first application था. I'll clear this up. Second, हम लोग क्या कर सकते हैं, it can be used to calculate the enthalpy of reaction which do not directly, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मतलब कोई कोई ऐसे है जिसको हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो अगेन मैंने आपको बोला उसका इनडायरेक्टली फाइंड करने के लिए आपको रिएक्शंस देखने पड़ेंगे। मैं एक और एग्जांपल दूंगा, मैंने एग्जांपल आपको CO का दिया था, अब एग्जांपल मीथेन का दे रहा हूं, ध्यान देना। सपोज मैंने आपको एक रिएक्शन दिया, द रिएक्शन इज C ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस गिव्स CH4 गैस। इसका डेल्टा H मैंने आपको बोला फाइंड करो। This reaction बराबर देखोगे तो मीथेन is formed from its element, therefore this is a kind of a formation reaction. So this is formation of methane. I am asking you to calculate what is the formation enthalpy of methane, कितना है। तब ये फाइंड करने के लिए मैं आपको कुछ इक्वेशन देता हूं, ठीक है, गिवन इक्वेशन। चलो गिवन इक्वेशन क्या हो गए, सबसे पहला इक्वेशन मैं आपको ये दे रहा हूं कि C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस gives CO2 gas। इसका डेल्टा H लिख के दे रहा हूं, लेट इट बी डेल्टा H1, दैट इज माइनस 393.5 किलो जूल्स। फिर मैं आपको दूसरा रिएक्शन दे रहा हूं, 2H2 गैस प्लस O2 गैस gives 2H2O लिक्विड। तो इसका मैंने आपको डेल्टा H2 दिया है सपोज माइनस 295.8 किलो जूल्स। फिर मैं आपको थर्ड इक्वेशन दे रहा हूं, that is CH4 gas
plus 2O2 gas gives CO2 gas plus 2H2O liquid. ओके, कंबशन ऑफ मीथेन। तो इसका जो डेल्टा H3 है दैट इज माइनस 890.32 किलो जूल्स। आई हैव गिवन दिस, दीज विल बी गिवन टू अस। ये तीनों इक्वेशन यूज करते हैं, यू हैव टू यूज दिस थ्री इक्वेशन एंड यू हैव टू फाइंड डेल्टा एच ऑफ दिस इक्वेशन। सो सबसे पहले ये तीनों इक्वेशन को ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सबट्रैक्ट, कुछ भी करो, गेट दिस इक्वेशन। तो कैसा लेके आएंगे? सी, this is your required equation, the first equation. Required equation has graphite 1 mole on the left hand side. तो see graphite 1 on left hand side आपके first equation में दिख रहा है। फिर 2H2 चाहिए, ये भी लेफ्ट पे चाहिए। 2H2 देखो यहाँ पर भी लेफ्ट पे आ रहा है सेकंड इक्वेशन के, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे तो C ग्रेफाइट और 2H2 एक साइड आ ही जाएंगे। मीथेन यू रिक्वायर ऑन द राइट हैंड साइड एंड थर्ड इक्वेशन में मीथेन की तरह लेफ्ट, तो राइट पे लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा? थर्ड इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली माइनस CH4 जो लेफ्ट पे है वो प्लस CH4 राइट पे हो जाए। सो आई कैन राइट हियर, देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ सीक्वेंस के, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ये दोनों करने से C ग्रेफाइट 2H2 लेफ्ट पे आ जाएंगे बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन लेफ्ट, सो यू ऐड देम। मीथेन राइट पे चाहिए तो थर्ड को सबट्रैक्ट कर दो, तो माइनस इक्वेशन 3। सो इफ आई डू दिस, सी एनालाइज इट, सारा लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट एंड 2 इक्वेशन नीड टू बी एडेड, तो दिस इज C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस, सी प्रॉपर्ली है, प्लस, चलो इसको भी ऐड कर रहा हूं, 2H2 गैस प्लस अगेन क्या आएगा? O2 गैस। अच्छा ये सबट्रैक्ट करना है, चलो सबट्रैक्ट कर देता हूं मैं, माइनस CH4 गैस, क्योंकि थर्ड इक्वेशन सबट्रैक्ट करना है, माइनस 2O2 गैस, ठीक है। गिव्स, राइट पे जाएंगे हम तो राइट पे क्या है? CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। ओके, लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया। अब ये इसको सबट्रैक्ट करना है, ओके, तो हम लोग सबट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस CO2 गैस माइनस 2H2O लिक्विड। तो सी प्रॉपर्ली, दिस थिंग्स गेट कैंसल आउट, ये तो पूरा जीरो हो गया राइट हैंड साइड। बराबर देखोगे तो ये माइनस 2O2, 1O2 और 1O2 भी कैंसिल हो गए, मतलब लेफ्ट पे क्या आ रहा है? सिर्फ C ग्रेफाइट आ रहा है, 2H2O और माइनस मीथेन, माइनस मीथेन गोज टू राइट साइड, बिकम प्लस मीथेन, क्योंकि ये साइड तो जीरो हो गया है। सो नाउ योर फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा? फाइनल इक्वेशन विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, C ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस। देखो ये एक बच गया है, ये एक बच गया है, ये माइनस में है तो इसको राइट पे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस मीथेन गैस। You got the required equation. So if you want to calculate this delta H, we can analyze that this delta H is basically delta H1 plus delta H2 minus delta H3. So you substitute all these values in it and you will get a final value of minus 74.8 kilojoules. This is the heat of formation for methane. See, डायरेक्टली आपको जो नहीं मिल सकता आप हेस लॉ यूज करके फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हेस लॉ आपको लिबर्टी देता है कि एक ही प्रोडक्ट के लिए अगर 3 स्टेप में किया है रिएक्शन, 4 स्टेप में किया है, तो टोटल हीट विल रिमेन व्हाट? कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टेप। सो अननोन वैल्यू ऑफ डेल्टा एच कैन बी इजीली फाउंड आउट बाय यूजिंग दिस। ओके, नाउ जो इसका मेन सेकंड एप्लीकेशन है इज ऑफ हेस लॉ इज बॉर्न-हेबर cycle. What is Born-Haber cycle? Born-Haber cycle is used to calculate lattice enthalpy of ionic solids. NaCl, KCl, Na2SO4, जो भी सॉल्ट है वो क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन होता है, उसमें लैटिस स्ट्रक्चर होता है, उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। वो लैटिस को ब्रेक करने के लिए या 1 मोल ऑफ लैटिस को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसको लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। और मैंने ये डिफाइन कर चुका है कि व्हाट इज लैटिस रिएक्शन। सो लैटिस रिएक्शन क्या होता है या लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? लैटिस एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 mole of lattice form from its constituent ions in gaseous state, या amount of energy absorbed when 1 mole of lattice is broken down into its constituent ions in gaseous state। तो मैं फॉर्मेशन का लिख देता हूँ, लैटिस फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होगा, तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। तो लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज क्यों? क्योंकि लैटिस बन रहा है अभी, इसके लिए रिलीज होती है। जब बॉन्ड फॉर्म होता है एनर्जी रिलीज होती है, तो मैं रिलीज लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन
1 मोल ऑफ लैटिस, कौन सा लैटिस, आयनिक सॉलिड्स का हम लोग पढ़े, तो 1 मोल ऑफ अ लैटिस, समझो आयनिक सॉलिड्स का पढ़े तो हम लोग आयनिक सॉलिड्स, आयनिक कंपाउंड इज formed from its constituent ion in gaseous state। मतलब जो मुझे NaCl का लैटिस फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं, Na प्लस इन gaseous state प्लस Cl माइनस इन gaseous state gives 1 mole of NaCl in gaseous state। ये हो गया लैटिस फॉर्मेशन। इस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज, ये फॉर्म हो रहा है, इसके लिए एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज समझो, एनर्जी रिलीज हो रही है -790 किलो जूल्स, -790 किलो जूल्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी। अच्छा, अगर आप ब्रेक कर रहे हो, मतलब समझो आपने NaCl लिया सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड ही रहेगा, and it breaks to form Na plus ions in gaseous state and Cl minus ions in gaseous state। तो लैटिस ब्रेक कर रहे हो तो ये टाइम पे लैटिस क्या हो जाएगा, +790 किलो जूल्स। लेकिन हम लोग लैटिस फॉर्मेशन रिएक्शन लेके चल रहे हैं, ओके। इसके लिए मैंने एनर्जी रिलीज लिखा है। लैटिस फॉर्मेशन रिएक्शन is what when the constituent ions they combine in gaseous state to form 1 mole of lattice। guys, अगर कोई इस रिएक्शन को इस तरीके से लिखता है, Na in solid state plus half Cl2 in gaseous state to give 1 mole of NaCl in solid state, तो ये फॉर्मेशन रिएक्शन होता है NaCl का। because formation reaction is when 1 mole of a compound is formed from its elements in their elemental state, in their standard state। तो सोडियम का स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड होता है, क्लोरीन का Cl2 गैस होता है। जब आप एलिमेंट्स को लेके बनाते हो तो वो फॉर्मेशन रिएक्शन होता है, वहां पर हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है। and when you take ions in the gaseous state and combine them to form an ionic salt, that is called as lattice enthalpy। so delta LH and delta FH के रिएक्शन सेम नहीं है, अलग है। एक फॉर्मेशन रिएक्शन है और एक लैटिस फॉर्मेशन रिएक्शन है। this is lattice reaction, this is formation reaction। क्लियर है? सो बॉर्न-हेबर साइकिल क्या करता है, इट इज अलाउ अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी फॉर एनी आयोनिक सॉल्ट यूजिंग हेसिस लॉ। तो अभी कैसा यूज कर रहे हैं देख लेते हैं हम लोग, ओके। बॉर्न-हेबर साइकिल में ये कैसे अप्लाई होगा। सपोज आई वांट टू फाइंड आउट, फाइंड डेल्टा LH ऑफ NaCl लैटिस, सिंपल आयनिक सर, इसका डेल्टा LH फाइंड करना है, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, पहले NaCl का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखता हूं, ठीक है। मतलब NaCl को एक स्टेप में बना लेता हूं। तो लेट्स राइट फॉर्मेशन रिएक्शन, ध्यान देना, ऑफ NaCl, ठीक है। ये मुझे पता नहीं है लैटिस एंथैल्पी कितना, मैं फॉर्मेशन रिएक्शन लिख रहा हूं पहले NaCl का। तो फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन रिएक्शन इज व्हेन यू मेक 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट। सो NaCl मुझे फॉर्म करना है तो मुझे एलिमेंट स्टेट लेना पड़ेगा। सोडियम इन सॉलिड स्टेट 1 मोल, half moles of chlorine in gaseous state, I am getting 1 mole of NaCl in solid state। ये हो गया फॉर्मेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर जो मुझे डेल्टा FH नॉट मिलेगा या डेल्टा FH नॉट हीट ऑफ फॉर्मेशन मिल रहा है, वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है -411 किलो जूल्स पर मोल। ये वैल्यू मुझे मिल गई है, ठीक है, पर मोल के हिसाब से सपोज ऑफ वैल्यू है। तो दिस इज अ फॉर्मेशन रिएक्शन, दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर NaCl, ये मुझे पता है। अब मैंने क्या किया, चलो यहां पर मैंने NaCl को कितने स्टेप में बनाया, आई मेड NaCl इन 1 स्टेप, आई गॉट दिस वैल्यू, ठीक है। अब मैं NaCl को लैटिस की तरीके से बनाऊंगा। तो लैटिस रिएक्शन क्या होता है, you require Na plus in gaseous state, Cl minus in gaseous state, you combine them, that is lattice reaction। तो चलो वो बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले, अच्छा मुझे सोडियम डायरेक्ट नहीं ले सकता, मुझे सोडियम लेना पड़ेगा सॉलिड स्टेट में, जिसका नेचुरल स्टेट है। फिर सोडियम को मैं क्या करूंगा, सोडियम को मैं सब्लिमेट करूंगा, सब्लिमेशन, टू फॉर्म सोडियम इन गैसियस स्टेट। तो यहां पर जो हीट होगी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो दैट इज नथिंग बट हीट ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा सब H। सपोज ये निकली 209 किलो जूल्स की हीट, ठीक है। फिर इस सोडियम जो गैसियस स्टेट में, उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो वो Na प्लस में आ जाएगा गैसियस स्टेट में। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो हम लोग कौन सी वैल्यू यूज करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप खुद ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आपको ये पता होनी चाहिए।
So suppose this is 496 kilojoules. Okay, मैंने Na+ बना लिया gaseous state में. Now I take chlorine जो ऑलरेडी gaseous state में बट डायटोमिक है. तो क्लोरीन को पहले मैं हीट करके मोनो एटॉमिक गैस में कन्वर्ट करूंगा. तो यहां पर जो वैल्यू होगी वो पता होगा आपको, डेल्टा बॉन्ड H या डेल्टा एटम H, हीट ऑफ एटमाइजेशन. सो सपोज हीट ऑफ एटमाइजेशन मुझे मिल रहा है 122. मैं ही ब्रेक कर रहा हूं तो मुझे ही पता होना चाहिए 22 किलो जूल्स पर मोल. अब जो Cl बन गया गैसियस स्टेट में, उसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो वो Cl माइनस गैसियस स्टेट में आ जाएगा. दिस विल बी कॉल्ड एज डेल्टा EgH. सो डेल्टा EgH क्या हो गया, -348 किलो जूल्स. फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा. जैसे ही ऐड कर दूंगा ये मुझे क्या बना के दे देंगे, NaCl सॉलिड लैटिस बन जाएगा. सी, दिस इज अ लैटिस फॉर्मेशन रिएक्शन where Na+ in gaseous state combining with Cl- in gaseous state. तो यहां से जो हीट लिबरेट होगी that is called as delta LH. So guys, मैंने लैटिस बनाया कितने स्टेप में, स्टेप 1 सोडियम को गैस में कन्वर्ट किया, स्टेप 2 सोडियम गैस को Na+ में कन्वर्ट किया, स्टेप 3 क्लोरीन को डायटोमिक से मोनोएटॉमिक किया. In step 4, I've converted monoatomic neutral chlorine atom into chloride. And then in step 5, I'm combining them. So 5 steps I used to make NaCl. And in formation reaction, 1 step I made NaCl. So Hess law क्या बोलता है? Hess's law says कि you prepare a compound in 1 step or you prepare a compound in multiple steps. The total amount of heat will remain constant. मतलब जो एक step की heat होगी वो ही इन सारे स्टेप्स की हीट को ऐड करने के बाद मिलेगी. मतलब अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ आई कैन राइट डाउन कि 1 स्टेप इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू ऑल दीज स्टेप्स, दैट इज डेल्टा सब H. ठीक है, समझो ये स्टैंडर्ड में मिला है तो हम लोग स्टैंडर्ड लिख सकते हैं. ठीक है, प्लस डेल्टा INH प्लस डेल्टा एटम H प्लस डेल्टा EgH और लास्ट में क्या आएगा फिफ्थ स्टेप का प्लस डेल्टा LH. नाउ डेल्टा FH का वैल्यू हमको पता है, दैट इज -411, डेल्टा सब H इज 209, डेल्टा INH इज 496 प्लस 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 122 प्लस माइनस, then you have this -348 डेल्टा EgH -348 प्लस डेल्टा LH. तो सबको अगर इक्वल करोगे तो आपको डेल्टा LH का वैल्यू मिलना पड़ जाएगा, दैट कम्स टू -790 किलो जूल्स. सो सी द लैटिस एंथैल्पी फॉर NaCl इज -790. तो ये आप कैसा निकाल रहे हो, वंस यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ हेस लॉ कि आपने एक स्टेप में प्रिपेयर किया तो आपको हीट इतना मिला और मल्टीपल स्टेप में कर रहे हो तो ये आपके हीट से, तो इन सबको ऐड करोगे द टोटल हीट कंटेंट इन मल्टीपल स्टेप will be equivalent to the total heat content in first step. So the Hess law give us this permissibility to calculate the lattice enthalpy of any ionic solute in Born-Haber cycle. So this is Born-Haber cycle purely based on the application of Hess law. Okay guys, so I hope everyone understood about Born-Haber cycle, and from here the enthalpy part is over. The next lecture will be on the based of entropy. Till then, take care, bye.